over to our guest joining us. We have Ghanshyam Tiwari, spokesperson of the SP, to tell us a little more. Tanuj Punya, spokesperson UP Congress, joining us. And we also have Dr. Manoj Mishra, spokesperson BJP in Uttar Pradesh. Let's quickly start with Mr. Ghanshyam Tiwari. Mr. Ghanshyam, here we're looking at several allegations, a flurry of reactions coming in against the UP police, saying that their intent itself was wrong. Vikas Dubey tried his best not to go through an encounter. He tried his best to scream his name, draw public attention, and then get arrested in full media glare so that an encounter wouldn't take place. 4 of his associates were also gunned down in an encounter. He may have had that fear, which is why he drew public attention before he literally surrendered. And here we have a case today that's unfolded right this morning, where Vikas Dubey has been encountered by the UP police. Here the UP police claim that he tried to escape. He used a gun, tried to shoot at them, and that's when they shot back in retaliation. How much of it are you taking into account here? Kill at will in Uttar Pradesh, as you may. Police or a gangster, now they act the same way. The reality of this story is playing out as if everyone in the country is a fool. The media is a fool, the judicial system is a fool, and the only smart people are in Uttar Pradesh police, who by the way, the footage is coming out that Vikas Dubey was traveling in one car and the car that overturned is another car. So Adityanath thinks that he is one in all judge, jury, executioner. In the last 3 years, he spent time washing off his own crime from the record. And on the other side, you see the police system turn entirely into gangster. A gangster kills 8 policemen by calling them at their home. They went there to raid him. Then he travels 1300 kilometers, chooses a place and script of his surrender. And then Uttar Pradesh police says that, look how brave we are, that with a caravan of 30 cars, 30 SUVs, we can show that one car overturned and the gangster was killed in an encounter. We are not fools. The fact is that Uttar Pradesh Adityanath government is trying to save itself, save the nexus of crime and police and politicians in Uttar Pradesh. This man wanted to contest on BJP ticket in 2022. Now BJP feared that he will expose everyone, so they killed him. Right. Let's quickly cut across to Dr. Manoj Mishra, spokesperson of BJP Uttar Pradesh. Mr. Manoj, what we're seeing here and the allegations that are coming in very seemingly look scripted. An encounter in which Vikas Dubey was killed. He tried to escape. Was there no protection for Vikas Dubey, knowing very well that this man is a dreaded criminal? He can escape. Cuff him, ensure that he doesn't escape, create a scenario where he's completely sealed tight. But here is a situation that the entire country was waiting for justice for those 8 police officers and their families who got gunned down thanks to Vikas Dubey, and now this man is murdered. सुनिए, मैं थोड़ा देर में कनेक्ट हो पाया, इसलिए आपका नाम नहीं जान पाता हूं मैडम। जी नबीला बोल रही हूँ, नबीला बोल रही हूँ मनोज जी। जी जी नबीला बोल रही हूँ मनोज जी। मीरा जी। हाँ नबीला। मीरा जी, देखिए एक बात बताएं, अभी कि जब योगी जी ने सरकार बनाई थी तो 2 चीजों पर जीरो टॉलरेंस रखा था, एक अपराध पर, एक भ्रष्टाचार पर। आप ये देखिए कि 8 पुलिस वालों की दिन दहाड़े रात में हत्या कर दी गई, और उस हत्या में और उसके बाद आज जब उसको गन डाउन किया गया, उसने जब पुलिस पार्टी पर हमला किया, उसके बीच में आप समाजवादी पार्टी का बिहेवियर देखिए कि अखिलेश जी कल कुछ ट्वीट करते हैं, आज कुछ ट्वीट करते हैं। लगातार वो व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं, व्यवस्था का साथ नहीं देते। ये देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी और श्री राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी गंभीर विपक्ष का रोल कब अदा करेगी, ये देश इंतजार कर रहा है। जी ऑपोजिशन, मनोज जी ऑपोजिशन तो बोलती रहेगी, मगर बीजेपी सरकार का इसमें क्या कहना है कि एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे, ये एनकाउंटर हुआ कैसा? ये आदमी एस्केप कैसे हुआ? गाड़ी से निकला कैसे? इतना भी टाइट से सील नहीं हुआ था, उसको सिक्योरिटी नहीं दी थी? देखिए ये वहां की स्थिति है और वहां की स्थिति सुबह 6-7 के बीच की है, तो ये बता पाना एकदम मुश्किल है। लेकिन आपको पुलिस की बात पे भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस जो कह रही है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। एक ट्रेंड चल गया है कि लोग अब अपराधियों की बात का भरोसा करते हैं, और ये समाजवादी पार्टी की देन है उत्तर प्रदेश को, तो वो अपराधियों की बात का ज्यादा भरोसा करते हैं, पुलिस प्रशासन सरकार की बात का भरोसा नहीं करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की देन है उत्तर प्रदेश में। मैंने जैसा कहा कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी
उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नजर ही नहीं आई। लगातार वो हर बात पे प्रश्न उठाते हैं। अगर जिंदा पकड़ लिया तो जिंदा क्यों पकड़ लिया, अगर काउंटर हो गया तो उसका एनकाउंटर क्यों हो गया। तो आप बताइए, कुछ तो होगा, कुछ तो करेगी पुलिस, कुछ तो होगा। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से, कि ये बताएं कि आप उन 8 शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार के साथ हैं या विकास दुबे और उसके एनकाउंटर के साथ हैं? जी, आप किसके साथ हैं? जो 8 पुलिस ऑफिसर मारे गए थे उनके परिवार के साथ पूरा देश है। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि इसीलिए तो हम पूरा देश चाहता था कि ये आदमी विकास दुबे पुलिस के हाथ में आए और लॉ जस्टिस सिस्टम के थ्रू फैमिलीज को जस्टिस मिले, इनको कॉन्विक्ट करे। मगर यहाँ पर एनकाउंटर में मार दिया गया, तो कैसे पता चलेगा कैसा नेक्सस है, कौन सा कनेक्शन है? पॉलिटिकल कनेक्शन के अलावा पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर कौन मदद कर रहा था उनको? मीरा जी, आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पूरा हिंडर कर दिया गया है अब। की थी तो उसके साथ हल्का सा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। उसने फिर 8 पुलिस कर्मियों को शहीद किया, इस बात से उनके शवों के ढेर लगाए और उनको जलाना चाहता था। इतना दुर्दांत अपराधी निश्चित तौर पर पुलिस पर हमला किया होगा, भागने की कोशिश करी होगी और उसी में उसका एनकाउंटर हुआ होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो उसका एक जो माइंड सेट था, जो हमलावर प्रवृत्ति थी, जो दुर्दांत अपराधी की आदत थी, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, मीडिया का ये भी शक है कि जो एनकाउंटर का साइट है वो साइट से थोड़ा दूर मीडिया को रोक दिया गया था एनकाउंटर के वक्त के थोड़े पहले। वो भी एक अभी क्वेश्चन बना हुआ है कि पुलिस ने मीडिया को क्यों रोका। मीडिया जो फॉलो कर रही थी गाड़ी को, वहीं पर रोक दिया गया, एक पॉइंट पर रोक दिया गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद एनकाउंटर की न्यूज आ गई। देखिए, ये वहां की तत्कालीन परिस्थितियां कुछ रही होंगी, चेकिंग चल रही थी और वो केवल मीडिया के साथ नहीं हो रहा था। जो भी गाड़ियां निकल रही थी सबकी चेकिंग हो रही थी, केवल मीडिया की नहीं हो रही थी। वो पुलिस का वर्जन है, वहां पर पुलिस वाले दिखाए गए हैं, वीडियो भी देखे हम लोगों ने। केवल मीडिया की गाड़ियां नहीं रोकेंगी, जो गाड़ियां उस रूट पर आ रही थी सबकी चेकिंग हो रही थी, सबको रोका जा रहा था, उसके बाद सबको जाने दिया जा रहा था। तो केवल मीडिया के साथ ऐसा नहीं। जी मनोज जी, आप जुटे रहिए। तनुज पुनिया से पूछते हैं, यूपी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ज्वाइनिंग अस, तनुज पुनिया जी, यहाँ पर यूपी पुलिस के ऊपर बहुत सारे, यूपी पुलिस के खिलाफ बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि उनका मकसद क्या था यहाँ पर। जो एनकाउंटर जो हुआ है, यूपी पुलिस अभी तक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया नहीं है, मगर जो जितना बात किया है रिपोर्टर्स के साथ, अब बोल रहे हैं कि ये भागने की कोशिश किया इन्होंने, विकास दुबे ने, और तब जो पुलिस का जो पिस्तौल है वो उठा के पुलिस को मारने लगा, तब वो रिटेलिएशन में फायर किया उन्होंने और वो मर गया। तो ये एक मूवी स्क्रिप्ट की तरह है। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.